in unit 2 state space analysis of control system. Okay, we have seen till now first physical variable method, second फर्स्ट फिजिकल वेरिएबल मेथड, सेकंड कौन सा मेथड था? सेकंड मेथड कौन सा बताया था? हाँ जी, कौन बताएगा? यथार्थ आप बताओगे, सेकंड मेथड कौन सा था? सर कोनिकल वेरिएबल मेथड में। कैनोनिकल वेरिएबल मेथड तो थर्ड था। सेकंड कौन सा था? फर्स्ट था आपका फिजिकल वेरिएबल मेथड और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सेकंड कौन सा था? ओके, स्पेस पेज वेरिएबल मेथड। ओके, फर्स्ट था आपका फिजिकल वेरिएबल मेथड, सेकंड पेज वेरिएबल मेथड, थर्ड कैनोनिकल वेरिएबल मेथड. In canonical variable method, first we have cascade decomposition, second we have parallel decomposition, third we have parallel decomposition with the repeated roots for characteristic equation. Okay, तो फिजिकल वेरिएबल मेथड में हमने स्टेट मॉडल डिफाइन किया था इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए. पेज वेरिएबल मेथड में हमने स्टेट मॉडल डिफाइन किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ट्रांसफर फंक्शन के लिए. और कैनोनिकल वेरिएबल मेथड में हमने स्टेट मॉडल डिफाइन किया था ट्रांसफर फंक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ. ओके, कास्केड में भी यही किया था, पैरेलल में भी यही किया था, और पैरेलल डिकम्पोजिशन विद रिपीटेड रूट्स में भी यही किया था. फाइन. उसके बाद हमने स्टडी किया था कल स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ओके, तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की क्या वैल्यू थी? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की क्या वैल्यू आई थी बताइए. स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की हमने कल क्या वैल्यू लिखी थी? ओके सर e की पावर at इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a इनवर्स. राइट. सो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नोटेशन था फाई ऑफ t और e टू द पावर at. ओके, a means matrix. Okay, and it is given by inverse Laplace of si minus a inverse. Fine. So yesterday we have seen a state transition matrix. How we can calculate a state transition matrix already we have seen. Okay, already we have seen properties of state transition matrix. Okay, so properties I think total we have 5 properties. Okay, for a state transition matrix already we have seen. So today we will discuss remaining topics of unit 2. Okay, first transfer matrix. After that we will discuss solution of state equation. Then we will discuss last topic controllability and observability of control system. ठीक है, fine. So let us see next topic for unit 2, transfer matrix और calculation of transfer function. ओके, सभी लोग नोट करिए टॉपिक ट्रांसफर मैट्रिक्स और कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर मैट्रिक्स और कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. ओके, ट्रांसफर मैट्रिक्स और कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो लेट अस सी ट्रांसफर मैट्रिक्स क्या होता है. ट्रांसफर मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स रिलेटिंग Laplace transform of output to Laplace transform of input of state space representation of a control system. Transfer matrix or transfer function matrix will relate Laplace transform of output to Laplace transform of input of state space representation of a control system. Right, so let us see how we can calculate transfer function matrix or transfer matrix for control system. Already I told you state model for the system. In state model we have state equation, we have output equation. Okay, so state equation we can write with the help of x dot t equal to ax of t, okay, plus
b u of t. Okay, so this is my state equation. Output equation we can write with the help of y of t equal to c x of t plus d u of t. So first we'll define state equation, second we'll define output equation. हमें ट्रांसफर मैट्रिक्स डिफाइन करनी है. ट्रांसफर मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने आपको बोला था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. आउटपुट है आपका y ऑफ t, ओके, इनपुट है आपका u ऑफ t. सो टू डिफाइन ट्रांसफर मैट्रिक्स, first we will take Laplace transform of first equation, then we will take Laplace transform of second equation. After that we can define ratio of Laplace transform of output to Laplace transform of input to define transfer matrix or transfer function matrix. ठीक है, so let us see Laplace transform of first equation. So can anybody tell me what is the Laplace transform of first equation? What is the Laplace transform of first equation? अजी बताइए, what is the Laplace transform of first equation? बताइए क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ओके, x डॉट t का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म? S capital X of S minus small x0. Small x0 means initial condition for x of t equal to राइट हैंड साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कैपिटल ए कांस्टेंट x of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल X of S प्लस b कांस्टेंट ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म. यहाँ ut यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है, ut आपका इनपुट सिग्नल है. ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जस्ट आपको नोटेशन लिखनी है. नोटेशन क्या होगी? कैपिटल U, राइट, कैपिटल U ऑफ S, राइट. ओके, इतना ठीक है? यस और नो? आपको ट्रांसफर मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, तो ट्रांसफर मैट्रिक्स के लिए इनिशियल कंडीशन 0 होगी. दैट्स व्हाई वी हैव S कैपिटल X ऑफ S माइनस A capital X of S equal to B U of S. Done. लेफ्ट हैंड साइड से कैपिटल X of S कॉमन लीजिए, so you have S minus A, but you know A आपका मैट्रिक्स है, S आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगी. दैट्स व्हाई हम S को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स होने चाहिए. S मैट्रिक्स नहीं है, तो S को मैट्रिक्स बनाने के लिए हम S को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज होगा मैट्रिक्स A के बराबर. फाइन, सो वी हैव Si माइनस A इक्वल टू B U ऑफ S. यहां से आपको कैपिटल X ऑफ S की वैल्यू लिखनी है, तो कैपिटल X ऑफ S कितना होगा? B U of S divided by Si minus A. It means denominator आपका मैट्रिक्स है, so we have Si minus A inverse. Okay, B U of S. Equation थर्ड. इतना क्लियर है सबको? Yes or no? सर एक चीज समझ नहीं आई सर. हाँ जी सर, हमने x of 0 को 0 को क्यों कर दिया, जबकि हम स्टेट स्पेस एनालिसिस में तो खुद ये मानते हैं कि हमारी अगर इनिशियल कंडीशन 0 ना हो तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमने फिर उसको 0 से क्यों इक्वेट कर दिया? नहीं, ट्रांसफर हम क्या करेंगे, वहां पर हम STM भी कैलकुलेट करेंगे ना. जब आप इसकी फाइनल इक्वेशन देखोगे तो वो STM की टर्म्स में आएगी. उसका मतलब उस इक्वेशन में STM होगा. हमने पहले STM कैलकुलेट कर लिया, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली. स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब है वो x की सारी स्टेट को डिफाइन करेगा फ्रॉम इनिशियल टू एनी वैल्यू ऑफ t. लेकिन ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम x ऑफ 0 को 0 एज्यूम कर रहे हैं. ओके, ठीक है, ओके.
जब आप इसकी इक्वेशन देखेंगे, ओके, तो या फिर जब आप स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे तो वहां पर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स नहीं होगी, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी। तो इसीलिए हमने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने x ऑफ 0 को 0 एज्यूम किया है। फाइन, सो वी हैव इक्वेशन थर्ड। ओके, हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है या फिर ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। दैट्स वाई इक्वेशन 2 का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट अस सी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? बाई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल बाई ऑफ एस इक्वल टू, in right hand side we have c x of t plus d u of t. c constant, x of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल x of s, d constant ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल u of s. We have fourth equation. So let us put value of x of s in fourth equation from third equation. ठीक है, आपको डिफाइन करना है रेशियो ऑफ y to u. That's why x की रिक्वायरमेंट नहीं है. So let us put value of x of s in fourth from third equation. So we have capital Y of s equal to c x of s की वैल्यू कितनी है? si minus a inverse, okay, b u of s, okay, plus du of s. So that's why y over u कितना होगा? पाई ओवर यू की वैल्यू कितनी होगी? सी, सी आपका मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। ओके, एस आई माइनस ए इनवर्स, एस आई माइनस ए भी आपका मैट्रिक्स है, पी भी आपका मैट्रिक्स है, प्लस डी। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स और ट्रांसफर मैट्रिक्स। सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। सो दिस इज ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स और ट्रांसफर मैट्रिक्स. So with the help of formula C si minus a inverse b plus d, we can calculate transfer matrix. ठीक है, okay, we can calculate transfer matrix. इतना क्लियर है सबको? C आपका मैट्रिक्स है, आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स, B आपका इनपुट कपलिंग मैट्रिक्स, D ट्रांसमिशन मैट्रिक्स और इनपुट आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स. So with the help of C si minus a inverse b plus d, we can calculate a transfer matrix or transfer function matrix. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes or no? Yes sir. ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको लास्ट में बता दूंगा, तीनों का एक साथ बता दूंगा, STM का, ट्रांसफर मैट्रिक्स का और सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन का. So let us see next topic, solution of state equation. Let us see next topic, solution of state equation. Solution of state equation. ठीक है, solution of state equation. Solution of state equation means हमें x of t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है with the help of state equation. हमें x of t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टेट इक्वेशन. ठीक है, तो लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन. ऑलरेडी आई टोल्ड यू स्टेट इक्वेशन फॉर डायनामिक सिस्टम. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेट इक्वेशन फॉर द डायनामिक सिस्टम? x डॉट t इक्वल टू a x of t प्लस b u of t. डन. Suppose first equation. ओके, सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए पहले हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम जो रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे. यहाँ सॉल्यूशन का मतलब है x ऑफ t आपको डिफाइन करना है. ओके, सो लेट अस टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेट इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेट इक्वेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था. सो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लेफ्ट हैंड साइड, इट इज s कैपिटल X ऑफ s माइनस स्मॉल x0. डन. इक्वल टू राइट हैंड साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म
कैपिटल A x ऑफ s प्लस B कैपिटल U ऑफ s। डन, इतना क्लियर है। x ऑफ s टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। सो वी हैव कैपिटल X ऑफ s, लेफ्ट हैंड साइड से वी हैव s और राइट हैंड साइड से वी हैव a। बट जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे वी हैव माइनस a। लेकिन आपको पता है कि s माइनस a ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ये मैट्रिक्स है, दैट्स व्हाई s को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सो वी हैव si माइनस a, ओके, इक्वल टू स्मॉल x0 प्लस b u ऑफ s। इतना क्लियर है सबको? यस और नो? सबसे पहले हमने स्टेट इक्वेशन लिखी, हमें स्टेट इक्वेशन का सोल्यूशन डिफाइन करना था। सोल्यूशन मींस हमें x ऑफ t की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। स्टेट इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, राइट, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें x ऑफ s की वैल्यू लिखनी है। तो कैपिटल X ऑफ s कितना होगा? si माइनस a इनवर्स, ओके, स्मॉल x0 प्लस कितना? si माइनस a इनवर्स b u ऑफ s। ठीक है, इतना ठीक है। अब आपको x ऑफ t की वैल्यू लिखनी है। आपको कैपिटल X ऑफ s की वैल्यू पता है, सो यू कैन डिफाइन x ऑफ t अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ s। दैट्स व्हाई x ऑफ t कितना होगा? इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल X ऑफ s। तो व्हाट इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल X ऑफ s? जस्ट आपको एज इट इज लिखना है बिकॉज सारे मैट्रिक्स हैं। तो जब भी आपको वैल्यू दी होगी ABC की, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो वी हैव जनरलाइज आंसर इनवर्स लाप्लास ऑफ कितना? si माइनस a इनवर्स, ओके, स्मॉल x0 आपका कांस्टेंट है, डन, प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ si माइनस a इनवर्स b u ऑफ s। ठीक है, b u ऑफ s। इसको हम b u ऑफ s को हमने बाहर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज u की वैल्यू भी s पे डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इनवर्स लाप्लास ऑफ होल क्वांटिटी si माइनस a इनवर्स b u ऑफ s। डन। तो x ऑफ t की वैल्यू क्या होगी? अगर आप फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखें, इनवर्स लाप्लास ऑफ si माइनस a इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? अगर आप फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखें, इनवर्स लाप्लास ऑफ si माइनस a इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू थी बताइए? इनवर्स लाप्लास ऑफ si माइनस a इनवर्स, दिस इज वैल्यू ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स phi ऑफ t और e टू द पावर at। डन। तो x ऑफ t को हम क्या लिखेंगे? phi ऑफ t स्मॉल x0, डन, प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ si माइनस a इनवर्स को आप phi ऑफ s भी लिख सकते हैं। सो वी हैव इनवर्स लाप्लास ऑफ, और ऐसा कंपलसरी नहीं कि उसको phi ऑफ s लिखना ही लिखना है, अदरवाइज आपको तो कैलकुलेशन करनी है तो आप si माइनस a इनवर्स कैलकुलेट कर लो, b से मल्टीप्लाई कर लो, u ऑफ s से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। लेकिन हम si माइनस a इनवर्स को phi ऑफ s भी लिख सकते हैं। सो सेकेंड टर्म हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ phi ऑफ s b u ऑफ s। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। और इसको हम बोलते हैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्टेट स्पेस एनालिसिस। यही आपका टाइम रिस्पॉन्स भी है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ओके, डन। इतना क्लियर है सबको?
यस और नो? यस सर। ठीक है, आपको फाइनल इक्वेशन ध्यान रखनी है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि कौन सी इक्वेशन टाइम रिस्पॉन्स को डिफाइन करेगी। तो टाइम रिस्पॉन्स होगा फाई टी एक्स जीरो प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एस बी यू ऑफ एस। ठीक, इसमें ही जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है। जो फर्स्ट टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो आपसे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स की वैल्यू भी पूछ सकता है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स या सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। ओके, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स इसको क्यों बोलते हैं? सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। इसको हमने जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्यों बोला है? फाई ऑफ टी का मतलब था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। एक्स ऑफ जीरो इनिशियल वैल्यू है एक्स ऑफ टी की। तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मीन्स रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस ओनली। ओके, इन दिस केस all the inputs for the system are zero. Zero input response means response due to initial conditions only. In this case, all the inputs for the system are zero. So first term means zero input response or source free response. Second term का मतलब है zero state response. इसको हम बोलते हैं zero state response. Zero state response या जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, या फिर हम इसको बोलते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स। फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ओके, तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स हम क्यों बोलते हैं? यहां इनपुट भी प्रेजेंट है। ओके, तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स मींस रिस्पॉन्स दैट इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इनपुट ओनली। ओके, हियर ऑल द इनिशियल कंडीशंस फॉर द सिस्टम आर जीरो। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो केवल इनपुट की वजह से मिलेगा, इनिशियल कंडीशंस जीरो है। लेकिन जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो केवल इनिशियल कंडीशंस की वजह से मिलेगा, इनपुट जीरो रहेगा। ओके, सो फर्स्ट टर्म मींस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, सेकेंड टर्म मींस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो एक्स ऑफ टी को हम ओवरऑल टाइम डोमेन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। So here x of t will also define overall time response or solution of state equation. Done? इतना ठीक है? Solution of state equation. इतना ठीक है? जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, ओके। तो एक पहले कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी में आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले तीनों का एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द स्टेट मॉडल। फॉर द स्टेट मॉडल, अब आपको यहाँ स्टेट मॉडल दिया होगा। Okay, for the state model x dot t equal to -1 1 0 -2 x of t plus 1 0 1 1 0 1 0 1 1 u of t. This is my state equation. We also have output equation according to y of t equal to matrix. Okay, for matrix, for first row we have elements 1 2, for second row we have 1 0, for third row we have 1 1. Okay, in state variables we have x of t. Calculate STM. Calculate STM. STM is state transition matrix. Calculate STM. STM means state transition matrix. Calculate STM. STM means state transition matrix. So how we can define state transition matrix? With the help of I of t or with the help of e to the power at, we can calculate according to formula inverse Laplace of SI minus A inverse. ठीक है, ओके, चलिए
तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बताइए, इसमें मैट्रिक्स ए कौन सा है? आपको स्टेट मॉडल दिया है, आपको मैट्रिक्स ए नहीं दे रखी है, तो आपको मैट्रिक्स ए लिखनी पड़ेगी। मैट्रिक्स ए कौन सी है स्टेट मॉडल के अकॉर्डिंग? सर -1 राइट 1 0 राइट ओके, सो दिस इज माय मैट्रिक्स ए। बी की जरूरत नहीं है बट लिख लेता हूं ना, आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको पता रहेगा। दिस इज माय मैट्रिक्स बी। जब आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल स्टेट मॉडल से, देन यू हैव मैट्रिक्स ए, यू हैव मैट्रिक्स बी, ऑलरेडी मैंने बताया भी था। ओके, दिस इज मैट्रिक्स सी, और मैट्रिक्स डी यहां पर 0 है। मैट्रिक्स डी यहां पर 0 है बिकॉज आउटपुट इक्वेशन में वी हैव ओनली वन टर्म। ओके, वी डोंट हैव मैट्रिक्स related with u of t, that's why d of 0, that's why d की वैल्यू 0 है। राइट, ठीक है। अब आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है? si माइनस a। ओके, उसके बाद ही हम उसका इनवर्स निकालेंगे। सो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट si माइनस a। a का साइज बताएगा कोई मुझे? मैट्रिक्स a का साइज क्या है? 2x2। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मुझे कौन वैल्यू बताएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज है a के बराबर 2x2। बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ? डायगोनल 1 होगा तो बाकी सब एलिमेंट राइट डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, रिमेनिंग 0। ओके, सो वी हैव 1 0 0 1 डन। माइनस मैट्रिक्स a की वैल्यू कितनी है? -1 1 0 -2। ओके डन। चलिए बताइए si माइनस a की वैल्यू बताइए जल्दी से। पहले मैं s से मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन कर लेना, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो वी हैव s0 0 s। ओके, माइनस -1 1 0 -2। सब्ट्रैक्शन करिए। सब्ट्रैक्शन तो आता है ना सबको? यस और नो? हाँ बताइए। एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट वी हैव s माइनस -1, सो वी हैव s + 1। 0 - 1 वी हैव -1। 0 - 0 वी हैव 0। s -2 सो वी हैव s + 2। यस और नो? So this is value of si minus a. This is value of matrix si minus a. Done? इतना क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है। तो si माइनस a का इनवर्स कैसे निकालेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय एडजॉइंट, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स का इनवर्स कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ si माइनस a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ si माइनस a। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ लिया जाए कि si माइनस a इनवर्स का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये तो सिंपल सा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए जल्दी से बताइए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट कैसे निकालते थे? अगर आपको याद हो तो बताइए, किसी को याद हो तो बताइए एडजॉइंट कैसे निकालते थे? पहले कोफैक्टर्स निकालते थे, उसके बाद जो कोफैक्टर नहीं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आती थी उसका ट्रांसपोज नहीं लेते थे? यस सर। वही तो एडजॉइंट होगा। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे ईच एलिमेंट का, उसके बाद जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, राइट। जो ट्रांसपोज होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का, वही मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। तो 2x2 के लिए बहुत सिंपल है। आई थिंक किसी को शॉर्टकट पता है? यस सर। हाँ बताओ क्या था शॉर्टकट? राइट बताओ क्या शॉर्टकट था? शॉर्टकट में सर इसके हम डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे। हाँ, और जो एंटी डायगोनल एलिमेंट हैं उनका हम साइन चेंज कर देंगे, और उसके बाहर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिटरमिनेंट से, जो होता है 1/AD माइनस BC। अच्छा, नहीं तो ये एडजॉइंट बता रहे हो आप ये या इनवर्स बता रहे हो? मैं कंप्लीट इनवर्स बता रहा हूं सर। राइट, फाइन ठीक है। एडजॉइंट आपने क्या बताया, किसको इंटरचेंज करना है? सर डायगोनल एलिमेंट को। हाँ तो कौन से अच्छा s1 s+1 और s+2 के इंटरचेंज करना है, यू आर सेइंग ना? राइट, ओके। और किसका साइन चेंज करना है? एंटी
डायगोनल एलिमेंट 0 और -1 इनको साइन चेंज कर दें। राइट। तो ये आपका शॉर्टकट है, तो आप इस शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं और ये यूज भी करना चाहिए। आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि एडजॉइंट निकालो मैट्रिक्स का, हमारा मेन फोकस तो एसटीएम के लिए है, तो आप शॉर्टकट यूज करिए। तो 0 का साइन तो सेम ही रहेगा, -1 का चेंज कर दो तो 1 हो जाएगा। तो सबको क्लियर है, s+1 और s+2 की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना है, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करना है। ठीक है, डन। ओके, सो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यस और नो? डायरेक्ट लिख दूं। सो वी हैव SI माइनस A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट होगा s+2 और s+1। पहले मैंने एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, उसके बाद फिर मैं साइन चेंज कर रहा हूं, तो 0 1 डन, डिवाइडेड बाई SI माइनस A का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा SI माइनस A के लिए? SI माइनस A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? s+1 s+2। इतना ठीक है, यस और नो? जल्दी से बताओ, इतना ठीक है, यस और नो? ठीक है, Yes, sir. चलिए। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स s के अकॉर्डिंग है, तो मेन प्रॉब्लम है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, लेट अस सी। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जस्ट एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट मींस s+2 ओके डिवाइडेड बाई कितना, s+1 s+2, 1 डिवाइडेड बाई s+1 s+2, नेक्स्ट 0 ही रहेगा लास्ट, सॉरी s+1 डिवाइडेड बाई s+1 s+2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो फर्स्ट एलिमेंट से s+2 कैंसिल, सेकेंड एज इट इज। नाउ लेट अस सी सेकेंड रो, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एलिमेंट से s+1 कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे। ओके, मैं एक साथ लिख दूंगा। अब हमें निकालना है STM। तो STM क्या था, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या था, phi of t और e⁻at we have value inverse Laplace of SI minus A inverse. SI minus A inverse already we have calculated. So let us see how we can calculate inverse Laplace transform for SI minus A inverse. So you can write inverse Laplace of first element क्या हुआ 1/s+1, second element you have 1/s+1 s+2, third element you have 0, sorry third element or you can say first element of second row, second element for second row we have 1/s+2। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स का तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो अंडरस्टूड है। ओके, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट का इनवर्स निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो 1/s+1 का तो इनवर्स आप निकाल सकते हैं। 1/s+1 s+2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी आप उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मीनिंग है आपको एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो STM कितना होगा, STM होगा इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+1। डन। सेकेंड का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमें सेकेंड को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा a/s+1 प्लस b/s+2। a और b निकाल लेना, वैसे a यहाँ पर 1 आएगा, b -1 आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू आएगी -1। c तो आप नेक्स्ट 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 ही रहेगा। लास्ट क्या है 1/s+2, सो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+2। डन। चलिए फाइनल बताइए आंसर, फाइनल आंसर बताइए। STM क्या होगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगी?
सर e टू द पावर माइनस के t, ओके, e टू दी पावर माइनस टी यू टी, ओके, और इसका नेक्स्ट कॉलम में आएगा e टू द पावर माइनस t माइनस e टू द पावर माइनस के 2t, e टू दी पावर माइनस टी माइनस e टू दी पावर माइनस टू टी यू टी, ओके, 0 जीरो e टू दी पावर माइनस टू टी यू टी। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी एसटीएम पूछ सकता है और आते भी हैं, कंपटीशन में एसटीएम के क्वेश्चंस आते भी हैं, और जनरली 2x2 के आते हैं, तो 2x2 में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको 3x3 का दे देगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ओके, क्योंकि 3x3 में पहले को फैक्टर निकालो, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, फिर इनवर्स निकालो, और आपको फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो एसटीएम में जो जनरली क्वेश्चन आएगा वो 2x2 मैट्रिक्स का ही आएगा, मींस ए जो होगा वो 2x2 का ही होगा, और एसटीएम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 100% पूछा ही जाएगा, या तो एसटीएम का जनरल फॉर्मूला पूछा जाएगा, या एसटीएम कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा, या एसटीएम की प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, जो कल मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। हो सकता है आपसे चार स्टेटमेंट दे दे और पूछ ले कौन सी प्रॉपर्टी है, या चारों स्टेटमेंट से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो एसटीएम के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, सिंपल है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है। यस और नो, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफर फंक्शन के लिए, सो नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द ट्रांसफर मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम गिवन below. Determine the transfer matrix for the system given below. Determine the transfer matrix. Determine the transfer matrix for the system given below. For the system given below. System means we have a state model for the system. ओके, अगर आपको सिस्टम दिया होगा तो पहले उसका स्टेट मॉडल कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी फॉर फाइनल कैलकुलेशन। तो अगर आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा तो पहले आपको स्टेट मॉडल कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर आपको सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो आपको उसका स्टेट मॉडल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया होगा तो उसके लिए आपको पहले उसका स्टेट मॉडल कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फिजिकल वेरिएबल मेथड। सो हियर वी हैव स्टेट मॉडल अकॉर्डिंग टू x1 डॉट x2 डॉट इक्वल टू 0 3 -2 -5। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉलम मैट्रिक्स एलिमेंट्स x1 x2। नेक्स्ट मैट्रिक्स वी हैव 1 1 1 1 of elements 1 1 1 1 ut. Output matrix we have y equal to matrix we have elements 2 1 1 0. Okay, next we have column matrix for state variables elements or variables we have x1 x2. Okay, चलिए ट्रांसफर मैट्रिक्स बताइए कितना आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स क्लियर है। यहां से आपको मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी क्लियर है। यस और नो? गुड, ओके। तो मैट्रिक्स ए आपको क्लियर होगा। ओके, लेट मी हाईलाइट। सो दिस इज माय मैट्रिक्स ए। ओके, दिस इज माय मैट्रिक्स बी। Okay, if you compare given state model with standard or generalized state model, then you have matrix A, matrix B. Okay, this is my matrix C. Okay, और matrix D कितना होगा? matrix D कितना होगा? 0। तो आपकी कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली कम हो गई। ओके, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स आप कैसे कैलकुलेट करते थे?
ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करते थे अकॉर्डिंग टू बाई ओवर यू इक्वल टू सी कितना एस आई माइनस ए इनवर्स ओके बी प्लस डी डन। तो यहाँ डी आपका 0 है, तो इट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी। चलिए आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे जस्ट। तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करें? सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करें? एस आई माइनस ए, राइट। चलिए बताइए एस आई माइनस ए इनवर्स कितना होगा। पहले एस आई माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का साइज आपको पता है 2 क्रॉस 2 है, तो दैट्स वाई एस आई कितना होगा S0 0S। और मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या थी? मैट्रिक्स ए था आपका 0 3 राइट, -2 -5। चलिए बताइए एस आई माइनस ए बताइए कितना आएगा। तो एस आई माइनस ए आएगा कितना S0 -3 ओके, सो वी हैव -3 0 -2, so we have 2 S -5, so we have S plus 5 डन। सभी का मैच हो रहा है एस आई माइनस ए, सभी का एस आई, हाँ राइट ओके। नाउ लेट अस सी एस आई माइनस ए इनवर्स ओके। शॉर्टकट यूज करके जल्दी से एस आई माइनस ए इनवर्स निकालिए। एस आई माइनस ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या था? दोबारा मैं लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एस आई माइनस ए। तो डिटर्मिनेंट तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एडजॉइंट क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करिए। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? इंटरचेंज का मतलब है जहां आपने s लिखा हुआ है वहां s प्लस 5 आएगा, और जहां आपने s प्लस 5 लिखा हुआ है वहां s आएगा। साइन किसके चेंज करने हैं? 2 और -3 के। 2 पॉजिटिव है तो 2 -2 हो जाएगा, 3 नेगेटिव था तो 3 हो जाएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए कितना होगा? कितना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए? S into S plus 5 plus 6 राइट, S into S plus 5 plus 6। और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करिए राइट, वैसे करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा। ओके चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। ओके तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ बेनिफिट होगा सिंप्लीफाई करने से। हाँ बेनिफिट क्या होगा? हम इसके फैक्टर कर सकते हैं आई थिंक, है ना, उसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू मिलेगी s² प्लस कितना 5s प्लस 6। ओके तो फैक्टर पॉसिबल है ना? क्या होंगे फैक्टर? कौन बताएगा फैक्टर क्या होंगे? चलो मैं लिख देता हूँ, s प्लस 2, दूसरा s प्लस 3 राइट। तो फैक्टर करने से ये फायदा होगा कि आप इनवर्स इजीली निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको इनवर्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। इनवर्स मींस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वैसे निकालना है हमें इनवर्स लाप्लास? नहीं निकालना ना इनवर्स लाप्लास, तो हाँ एसटीएम नहीं निकालना, राइट राइट। बट फिर भी एस आई माइनस ए इनवर्स को लिखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एस आई माइनस ए इनवर्स में पहले लिख देता हूं। तो लेट अस सी एस आई माइनस ए इनवर्स, एस आई माइनस ए इनवर्स कितना आएगा? एलिमेंट बाई एलिमेंट सिंप्लीफाई करिए। तो s प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना s प्लस 2 s प्लस 3 राइट। दूसरा यहां थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, ऊपर वाला अलग पार्ट है, ठीक है, इसको देख लेना। 3 डिवाइडेड बाई कितना? 3 डिवाइडेड बाई, बोलो भाई, 3 डिवाइडेड बाई ओके s प्लस 2 s प्लस 3। नेक्स्ट बताओ, -2 डिवाइडेड बाई
S+2 S+3। यहाँ आपको एलिमेंट टू एलिमेंट सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट। लास्ट क्या था, S डिवाइडेड बाई कितना, S+2 S+3, डन। So this is my value of SI minus A inverse. Now let us see transfer matrix। सबको एक साथ लिख लेते हैं, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, राइट। सो लेट अस सी वैल्यू ऑफ ट्रांसफर मैट्रिक्स y of S to U of S। कितना था फॉर्मूला, C मैट्रिक्स SI माइनस A इनवर्स मैट्रिक्स D तो 0 हो गया था, राइट। तो C मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करिए, कितनी थी C मैट्रिक्स की वैल्यू, 2 1 1 0। SI माइनस A इनवर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, S+5 डिवाइडेड बाई S+2 S+3, ओके, 3 डिवाइडेड बाई S+2 S+3। नेक्स्ट -2 डिवाइडेड बाई S+2 S+3। लास्ट था S डिवाइडेड बाई S+2 S+3, डन। और मैट्रिक्स B बताओ, B कितना था, B कितना था मैट्रिक्स, सर 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके, 1 1 1 1, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। मल्टीप्लाई सबको आता है, भूले तो नहीं आप लोग, मल्टीप्लाई आता है ना सबको। देखो फर्स्ट और सेकंड अगर हम पहले परफॉर्म करेंगे तो अगर हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा, बिकॉज सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 1 1 1 है ना। हाँ, तो ऐड करके इजीली हम कर सकते हैं उसको। चलिए बताइए, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। अच्छा, किसका मल्टीप्लाई होगा पहले, हाँ जी, पहले 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, S+5 अपॉन S+2 इंटू S+3 के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -2 ओवर S+2 S+3। आपको पता डिनोमिनेटर सेम है, बस नोमिनेटर देख लो। तो कितना हो गया, 2S + 10 -2, तो कितना हो गया 2S + 8, यस और नो, डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, S+2 S+3, ओके, डन। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट की तरफ बढ़ो, नेक्स्ट बताओ कितना आएगा, नेक्स्ट बताओ बच्चों कितना आएगा, 3 इंटू, यहां भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू S S, सो वी हैव 6 + S डिवाइडेड बाई कितना, S+2 S+3, डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रो बताओ, बताइए 1 0 है, राइट। तो 1 का मल्टीप्लाई S+5 से, अजी बताइए कितना आया, 1 का मल्टीप्लाई S+5 ओवर S+2 S+3 से, लास्ट वाला 0 हो जाएगा, तो सेम मिलेगा आपको S+5 डिवाइडेड बाई S+2 S+3। केवल नोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम है तो देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताइए, 3 का मल्टीप्लाई 1 से ना, और S का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 मिलेगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव 3 डिवाइडेड बाई S+2 S+3, ओके। So this is value according to multiplication of first matrix with second matrix, okay। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए मैट्रिक्स B से, 1 1 1 1 से। चलिए फाइनल आंसर बताइए जल्दी से। यहां भी डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करिए और आंसर लिख दीजिए। कितना आया,
कितना आया आंसर? हाँ जी बताइए, आंसर कितना आया? 2s प्लस 8 प्लस 6 प्लस s, तो 2s प्लस s 3s और 8 प्लस 6 14। यस और नो? यस और नो? ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, कितना? s प्लस 2 s प्लस 3। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट भी सेम। सर सेम रहेगा। हाँ राइट, 3s प्लस 14 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 s प्लस 3। डन। नेक्स्ट बताओ। s प्लस 8। राइट, s प्लस 8। हाँ तो कैलकुलेशन सिंपल है। आपको देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स में डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, लास्ट एलिमेंट भी सेम ही मिलेगा। सेम। हाँ तो आपको ऐसा नहीं है कि वो इतनी आपको मैट्रिक्स ऐसी दे देगा कि आप मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम लगे, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे आपको, राइट। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े और बिना कैलकुलेटर के ही कैलकुलेशन हो जाए। s प्लस ए डिवाइडेड बाई s प्लस 2 s प्लस 3। okay, so this is my transfer function matrix. Okay, so this is my transfer function matrix. Okay, this is my transfer function matrix. डन, ठीक है, इतना ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। नो सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर इसमें हम इम्पल्स रिस्पॉन्स और यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें हम इनपुट रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, हाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन u ऑफ s से मल्टीप्लाई करके फिर अलग अलग आएगा सबका। तो जनरली क्या होता है ना, जहां सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है वहां पर हम जनरली नॉर्मल एनालिसिस यूज करते हैं, लेकिन जहां पर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, तो आप देख लो, तो आपको 4 आउटपुट मिल रहे हैं। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, यस सर। तो इसका मतलब आपको 4 आउटपुट मिल रहे हैं। जी। तो जनरली ये मीमो सिस्टम की जब एनालिसिस की बात होती है तो वहां पर हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा जो आपने बोला कि ट्रांसफर फंक्शन में हम इनिशियल कंडीशंस इंक्लूड नहीं करते थे, तो यहाँ पर भी हम इनिशियल कंडीशंस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एसटीएम की हेल्प से पर्टिकुलर टाइम पर सिस्टम की इनिशियल, सिस्टम के लिए इनपुट के लिए इनिशियल वैल्यू बता सकते हो। तो ये फैसिलिटी है। उसको इंक्लूड कैसे करना है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन आप एसटीएम से x ऑफ t के लिए पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वैल्यू बता सकते हो। लेकिन ऐसा ट्रांसफर फंक्शन में नहीं था, ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच में नहीं था। सर हाँ, तो ये सर हमारे पास आया y ऑफ s अपॉन u ऑफ s। हाँ। अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो y ऑफ t आएगा, लेकिन u ऑफ s से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ है ना, u ऑफ s इम्पल्स भी हो सकता है, u ऑफ s का मतलब u ऑफ t इम्पल्स भी हो सकता है, दूसरा इनपुट भी हो सकता है। मीमो में तो यही होता है ना, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम में आप इनपुट सेम भी रख सकते हैं, इनपुट अलग अलग भी रख सकते हैं। हाँ। तो एक बार में आपको 4 इनपुट के लिए 4 आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हमारा एक टॉपिक और बचा है, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो सभी से यही बोलना है कि
एटलीस्ट एक एक न्यूमेरिकल। आपको लगता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, इट्स ओके, लेकिन फिर भी अगर हम एक एक न्यूमेरिकल, एक एक जो भी टॉपिक्स हैं उनसे कर लेंगे तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो हमें वहां हेल्प मिलेगी। ओके, और आपको पता है कि न्यूमेरिकल जो आएगा पेपर में वो एज इट इज तो मिलेगा नहीं आपको,